Good morning student, I'm your teacher Meena. Today I will teach the new chapter of geography. The name is Major Dominance of the Earth. Okay student, अब मैं वीडियो इसलिए अवेलेबल करा रही हूँ, काफ़ी बच्चों को नेटवर्क इशू है, कुछ बच्चे गूगल क्लास से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, कुछ हो नहीं रहे हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए वीडियोज़ बनाऊँगी, उसको बच्चे से देखना, अंडरस्टैंड करना. ओके, लेट बी स्टार्टेड. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द एनवायरनमेंट. आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा एनवायरनमेंट क्या होता है. ठीक है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन component of the environment meet, overlap and interact. Okay, in this chapter we discuss about the all major component of the earth. Let me start it. Major dominant of the earth. As you have read the first chapter, the earth is the only planet which has life. Human beings can live here because life sustaining elements of land, water, air is present on the earth. Okay student, अब देखो अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ सर्वाइव है. क्यों? यहाँ पे लैंड है, वाटर है, एयर है. इसी रीज़न से क्या है, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे ह्यूमन बींग सर्वाइव कर सकता है. ओके, अब वर्ड ओरिजिन देखेंगे. इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथो मीन्स टू स्टोन, एटमोस मीन्स टू वेपर, hydra means so water, bios means to life. Can you make words using these words? Okay, अब देखो स्टूडेंट्स, अब मेनली लिथोस्फीयर, एटमोसफियर, हाइड्रोस्फीयर, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो जो लिथो है, एटमो है एंड आफ्टर दैट बायो, दे कम फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज. ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 component of the environment meet, overlap or interact. The solid portion of earth विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. ओके स्टूडेंट, जो हमारी धरती है, धरातल है, सॉलिड पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर. ओके, आफ्टर दैट जो गैसियस लेयर है विच इज़ कवर्ड अप सराउंडिंग वे बाय द अर्थ, the gaseous layer that surround the earth is called atmosphere. Okay, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, other gases are found. Water covers a big area of the earth surface. The area is called hydrosphere. Okay student, where we find the solid portions, धरातल को, अर्थ के पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर. और जहाँ पे एयर कंटेंट है, गैसेस है, उस एरिया को क्या बोलेंगे, एटमोसफेयर. वेयर वी फाउंड द वाटर, so we call it hydrosphere. Okay student, the main component of the major dominance of the earth is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Okay, the hydrosphere comprise water as well as form one with the ice, water and water vapors. Okay students, hydrosphere में सिर्फ water include नहीं है, also found in polar region we find ice, they also include in hydrosphere. Okay, after that main important point of this chapter is biosphere, the narrow zone where we find the land, water, air together which contain all the form of life. ऐसा एरिया बच्चे जहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, दे इंटरेक्ट ईच अदर, फाइंड वी टुगेदर. तो इसको ग्रुप में क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर. बायो मीन्स लाइफ, लाइफ जहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर रही है उसे बायोस्फीयर करेंगे. ओके, now we discuss about the lithosphere. Litho means to student, in a Greek language we study about it. Okay, lithosphere means to stone. Okay, or sphere. The solid portion of earth is called lithosphere. आपको ये definition learn होनी चाहिए. Okay, the comprise of the rocks of the earth crust and the thin layer of the soil that contain nutrient elements which sustain organisms. Okay student, अब हमारे जो upper layer है, upper crust है, ओके, उस लेयर सोयल में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर सकते हैं. और हम क्या करते हैं अर्थ पे, मेनली हमारे जितने भी सॉइल फॉर्म, वाई वी यूज़ द सॉइल, वाई वी यूज़ द hard surface of the crust for the use of the cultivation of crops or cultivation of many fruits and vegetable also. There are the two main division of earth surface. The large landmass is known as the continents. Okay student, अब हमारी अर्थ इतनी बड़ी है, उस पर इतना ज़्यादा लैंड मास है, तो जो हाईएस्ट लैंड मास है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट. एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज कॉल्ड द ओशियन. और जहाँ पे बहुत बिग एंड बिग अमाउंट में वाटर अवेलेबल है तो उसको क्या बोलेंगे, ओशियन basins. Okay, all the oceans of the world are connected with one another. Look at the map of the world 5 and 1. All the land masses connected with another. Okay, level of the sea water remain the same. Is too is too important student. The level of the sea water remain same every year everywhere. Okay student, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको इसको मार्क कीजिए.
जो सी लेवल का जो वाटर है, जो सी लेवल होता है हमेशा क्या होता है, सेम होता है, बट हमारे सोइल का या हमारे हार्ड पोर्श का या क्रस्ट का जो लेवल है इक्वल नहीं होता। इसी रीज़न से एलिवेशन ऑफ लाइन इज़ मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। ओके, अब हम कहते हैं देहरादून इतनी हाइट पे है, दिल्ली इतनी हाइट पे है, तो ये हाइट कहाँ से काउंट हो रही है, दे काउंटेड विद द हेल्प ऑफ द सी लेवल, बिकॉज वी काउंट द सी लेवल इज ज़ीरो। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज ज़ीरो। ओके, आपको ये मार्क करना है, इसको लर्न करना है। ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट the main continent of the earth. Though we find here the 7 continent of the earth, which is North America, South America, Asia, Africa, Europe and Australia. ठीक है, आपको ये 7 के 7 लर्न होने हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं आपको रिटर्न में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, वो आपको खुद लिखने हैं। अभी जितना भी पढ़ाया है इसको आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द लिथोस्फीयर। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द एटमॉस्फेयर। थर्ड इज व्हाट डू यू मीन बाय द हाइड्रोस्फीयर एंड फोर्थ इज व्हाट डू यू मीन बाय द बायोस्फीयर। ओके, एंड टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द continent, tell the 7 continent of the earth and also describe the all continent in the map. Okay student, these are the homework of your this chapter, or other part of this chapter we study in another video. Okay student, take care.